Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities, and in today's video from statistics subject main chapter we are doing, and the topic will be missing value. Okay, so we have to find out the missing value. Okay, either of the marks or the frequency is missing. So let's see here how we're going to calculate, and remember here the mean if it be given to you. Okay, the mean will be there. Okay, and most important thing, in the next video we are going to start some more numericals on the miscellaneous questions of the same chapter mean. Okay, so few questions we will do, and then afterward we will start median and mean. Okay, numericals. So please stay tuned with the channel Economic Cities, okay, for more easy explanation and numerical solution. Okay, so let's start here. Now x bar is given, that is the mean. Okay, and here the simple series are, so I'm going to just apply the direct method, right? So I'm just writing it here. For example, first of all, what I'm going to do, I'm just going to write here. Okay, so given hai aapka x bar is equals to 41, and we assumed missing value. Okay, you have to mention as F1. Okay, यहाँ पे हम F1 लिख देंगे. So what I'm going to do, I'm going to write it here again. X कितना है? 20, 30, 40, 20, 30, 40, and after F1. F1 में बल्कि दूसरे कलर से लिख देती हूँ, तो it will be easy for us to remember. This is missing. Okay, then 60 and 70. Okay, this much done. Now frequency is given, right? So frequency is 8, 12, 20, 8, 12, 20, 10, 6, 4, 10, 6, 4. Now summation F would be how much? 8 plus 12, 20, 10, 6, and 4. You will get 16. And here I'm going to write the formula first. X bar is equals to summation fx upon summation f. Okay, so here x bar is already given 41 is equals to fx. We don't know अभी देखते हैं हम. And summation f is 60. ना तो समझ में आ रहा है ना आपको? इस तरह सिंपल हमने f1 assume कर लिया missing value को. Now I'm going to write here fx. So 20 into 8 you will get 160. Then 30 into 12 360. Then 800. ना अब इसमें 10 है और f1 की मिसिंग वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे? 10 प्लस f1. तो क्या 10 f1 ही हम लिख दें, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? तो मिसिंग वैल्यू जो है आपकी वो 10 f1 आ गई. ओके, नाउ 60 into 6 360 एंड देन 280. अब समेशन fx कितना हो जाएगा आपका? इन सबको टोटल कर लेंगे, लास्ट में हम लिख देंगे प्लस, यहाँ पे इसको भी देखो चेंज ही कर दूंगा, 10 f1. ठीक है, तो इन सबको जब मैं टोटल करूंगी 160 प्लस 360 प्लस 800 प्लस 360 प्लस 280, so I will get here 1960. Now I'm going to put this whole figure here plus 10f like this. Now I'm going to do the cross multiplication. Is equals to 41 into 60 is equals to 1960 plus 10f1. Okay, then 41 into 60 you will get 2460 is equals to 1960 plus 10 f1. Now we will just put the values together. So you will get 2460 minus 1960 is equals to 10 f1. Right? Simple, बस ऐसे ही आपको बस करते जाना है. And then you will get here 500 minus जब इसको करेंगे इससे is equals to 10 f1. Now f1 is equals to 500 divided by 10. So you will get 50 marks or the 50 missing value.
and this is your answer. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी 50 F1 में यहाँ पे this should be 50. Okay, the whole calculation. Please take the screenshot. This is your solution. Question number 1. Okay. आपको मीन गिवन होगा, assume missing value as F1. टोटल करना है, then F1 को आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे, and then this. Now again I have one more question. Now if suppose this class interval is given, then how you going to say this here? Let's understand here. Question number 2. Again class interval कितना है, 0 से लेके 60 तक की होगी. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60. Then frequency given here, 12, 8, 27. Okay. And again I am assuming here F1. ठीक है, जो missing है उसको हमने F1 मान लिया. Then 17 and then 6. Okay. अब next हमें क्या, तो जब भी class interval होता है I have to calculate the mid value. Mid value means L1 plus L2 divided by 2. Okay, same thing. तो ये आपका आ जाएगा 15, then 25, then 35. Minute. Just wait, 10 से 20 तक है, नहीं, just wait, just wait. Just wait here, wait for a while. 28. Let's see. Okay, here. देखो frequency mid values में गलत लिख रही थी. 12, 8, 27, 17 and 6. So here you have the mid values different. Just wait, very sorry. तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5, 15, 20, 25, then equal 40, 0, 10, 10, 20, 30, 40. देखो 5 तो ये हो गया, 20 और 10, 30, 15 हो गया, 30 और 20, 50, देन ये आ गया 20. मैं गलती यहाँ पे कर रही हूँ, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी. यू शुड ओपन योर आईज एंड डू द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ. 35, then 45, and then 55. Now it's okay. Now I have to multiply this. 60 to 70, F into M. Okay. Then 675. Now here F1, that is missing, right? So what I'm going to write here, 35 plus F1. Okay. ये missing है मेरा value. Then 765 and then 330. Now I'm going to sum of everything. तो summation F is equals to frequency कितना होगा, जो भी है उसमें हम ये सबको हम ऐड करेंगे, लेकिन F1 का मुझे नहीं पता, so I will write here F1. Then summation F1 का, FM का भी सिंपल हम ऐसे ही करेंगे, फिर सबको ऐड कर लेंगे, प्लस 35 प्लस F1. ओके, तो summation FM अब कितना आ जाएगा, 2100 plus 35 F1. Now I'm going to write the formula. Same formula रहेगा आपका continuous series का, that is x bar is equals to summation FM upon summation F is equals to x bar कितना था मुझे बताया था शुरू में, x bar is 28. So 28 is equals to summation FM कितना है, 2100 plus 35
F1 अपॉन समेशन F कितना है 80 F1, ठीक है। एट्टी प्लस F1, सॉरी इसकी वैल्यू नहीं दी है ना अभी। 80 प्लस F1 ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 28 इंटू 80 कितना आएगा, ये मैं आपकी समझ के लिए लिख रही हूँ, राइट। 80 कितना आया इसमें, और प्लस आप करेंगे 28 इंटू, तो कितना आ जाएगा इसमें 2240, यहाँ से आया प्लस 28 को मल्टीप्लाई करा F1 से, 28 F1 इज इक्वल्स टू 2100 प्लस 35 F1। देन नंबर्स को एक तरफ कर लो, 2240 माइनस 2100 इज इक्वल्स टू 35 F1 माइनस 28 F1। ये मिसिंग वैल्यू चल रहा है ना। नाउ यू विल गेट हाउ मच हियर, 140 इज इक्वल्स टू 35 माइनस 28, तो आपका आ गया 7F। नाउ F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 डिवाइडेड बाई 7। सो फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग थी आपकी कितनी है, वो 20 स्टूडेंट्स की है। F1 कितना है, 20 स्टूडेंट्स, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन अरिथमेटिक मीन आपको गिवन है, ओके और मिसिंग ये है, तो मिसिंग को मैं मान के चलती हूँ F1, ठीक है। एंड सबमिशन F कितना होगा, कर लो इसको भी जरा सा। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 2, तो 47। वैसे क्वेश्चन है F1, ठीक है। मिड वैल्यू निकाल लो जल्दी से, इसी के आगे मैं कर देती हूँ। मिड वैल्यू क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड वैल्यू कितने हुए, 20 प्लस 10 30, 30 का आ गया 15, 30 और 40 50 25, 70 का 35, 90 का 45 एंड देन 55, ओके। नाउ F और M को मल्टीप्लाई कर लिए, 20 इंटू 15 यू विल गेट 300, 15 इंटू 25 375, देन 350। अब देखो यहाँ पे क्या है, F1 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, 45 प्लस F1, ठीक है। बस ये स्टेप याद रखेंगे आप। देन नेक्स्ट क्या है आपका 110। ना सबमेशन FM कितना आएगा, सबको टोटल कर लोगे और इसमें ऐड कर देंगे 45 F1, तो 1135 प्लस 45 F1। Now I'm going to write the formula, x bar is equals to summation FM on summation F। x bar कितना गिवन है आपको, देखिए क्वेश्चन में था 25.4, तो आपने लिखा 25.4 इज इक्वल टू समेशन FM कितना है 47 प्लस F1, नहीं नहीं FM है ना यहाँ पे, तो मैं F क्यों लिख रही हूँ, जस्ट वेट। ये है 1135 प्लस 45 F1 अपॉन, ये इक्वल का साइन इसके सामने ही लगाओ, ओके। 25.4 इक्वल टू, ऐसे लिखो साफ साफ, ठीक है। देन 47 प्लस F1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 25 इंटू 4 और 25.4 इंटू 47, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 25.4 इंटू 7 करेंगे एक तरफ हम, प्लस करेंगे 25.4 इंटू F1, पूरा मैं इस तरह लिख रही हूँ ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। 135 प्लस 45 F1, तो ये कितना आया 1193.8, ये मल्टीप्लाई करके आया, प्लस 225.4 F1, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करा, इक्वल्स टू 135
plus 45 F1। नाउ अब हम नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। सो 1193.8 minus 1135 equals to 45 F1 minus 25.4 F1। तो इसको माइनस करने के बाद कितना आया, 58.8 इज इक्वल्स टू 20 F1। ओके, देन F1 कितना होगा, इज इक्वल्स टू 58.8 डिवाइडेड बाई 2। सो फ्रीक्वेंसी जो आपकी F1 जो मिसिंग वैल्यू थी वो कितनी आएगी, 2.94। ओके, तो हियर शुड बी 2.94 मिसिंग वैल्यू। ओके, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी, ये आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट वन बाय वन। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको अज्यूम कर लेना है कि जो भी मिसिंग है उसको F1 मान लिएगा एंड देन यू कैन इजिली सॉल्व। सो देखो यहाँ पे मिसिंग क्या था, x मिसिंग था तो हमने इसको F1 मान लिया। देन सिंपल फॉर्मूला आप इसको कैलकुलेट करके लगा देंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10F1 ही आएगा, ठीक है। और F1 यहाँ पे मिसिंग वैल्यू ऑलरेडी है। देन फॉर्मूला हमने fx अपॉन समेशन f किया, ओके। देन दिस इज द प्रोसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज द क्लास इंटरवल गिवन, तब आप कैसे करते हैं। मिसिंग वैल्यू को अगेन हमने F1 मान लिया और आपके पास मीन हमेशा गिवन होगा, राइट। सो हियर मिड वैल्यू निकालनी पड़ती होगी, क्लास इंटरवल इज गिवन, ओके। एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो 35 प्लस F1 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ना, तो फ्रीक्वेंसी को भी आप 80, जो भी इसका टोटल आ रहा होगा, 12 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 17 प्लस 6, तो ये टोटल है, इसमें हमें ऐड करना है, क्या करना है हमें नहीं पता। सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन ये F1। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द दिस, जो जो वैल्यूज आपके पास गिवन है आपने वो पुट करी, आपके पास मीन भी है, एंड देन मिसिंग वैल्यू जिसकी निकालनी वो आप इस तरह उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देंगे, राइट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग एंड क्लास इंटरवल गिवन, मिड वैल्यू के बाद आप इस तरह इसको करेंगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। With this, we come to the end of the missing values. In the next video, we are going to do more questions on mean, that is the miscellaneous questions. So don't miss that. And thank you for watching.